Good morning, dear student. Stand up fifth. So today we are going to learn English 2, lesson number 5. New lesson we are going to learn. Okay, let's start. Our new lesson name is Verbs of Incomplete Predication. So let's understand the lesson. In this chapter we are going to learn about verbs and its incomplete predication. Let's start. You have already learned this. Now we have to just refresh. First one, status verbs. The status verbs are those verbs that show the status of the subject of a sentence. Okay, understand that status verbs वो होते हैं जो एक सेंटेंस के स्टेटस को डिस्क्राइब करें. फॉर एग्जाम्पल, is, am, are, was, were, etc. If I say that I am a girl, then my status is shown by am, this am. If they are saying that we are happy, then the status is shown by are. Okay, the verbs like has, have, had show what the subject of a sentence possess. Possess means उस सेंटेंस में उस पर्सन के पास क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हैज़, हैव, हैड, दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. और इन्हें हम मेन वर्ब के तौर पर भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. शी इज़ माई कज़िन शोज़ स्टेटस. यहाँ पे इज़ ये हमें स्टेटस शोज़ कर रहा है, वो मेरी कज़िन है. सेकेंड वन, वी हैव अ 3-bedroom फ्लैट इन चंडीगढ़ शोज़ पोजेसन. ये पोजेसन बता रहा है. वी हैव मीन्स हमारे पास क्या है, हैव मीन्स हमारे पास क्या. सो वी हैव अ 3-bedroom फ्लैट. 3 बेडरूम का फ्लैट है हमारा चंडीगढ़ में. तो ये एक पोजेशन है, मीन्स हम अपनी चीज़ को बता रहे हैं कि हमारा पोजेशन है. ओके, शोज़ पोजेशन. सेकेंड वन, ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, verb used as helping verb with verb in the ing form like is, am, are plus verb plus ing. Auxiliary verb I have already told you, and helping verb also known as. So auxiliary verb is, am and are with the verb and plus ing form. So let's see another one. In past, if we are using in present, then is, am, are. And if we used to make sentence in past, then was, were plus verb plus ing form. Let's take an example. My father is sleeping. So it shows the possession by is, means auxiliary verb, and if it is, then it means it is in present sentence. Okay, my father is subject. Now is auxiliary verb. sleeping, sleep means सोना, ये हमारा verb है. Now see, sleep plus ing form, sleeping. My father is sleeping. So here possession is not described. Here status is described. It shows the status, that what his or her father doing. Status in present or past. Another one, the boys are playing. The boys are playing. Boys लड़के. आर ये हमारा स्टेटस शो कर रहा है इन प्रेजेंट टेंस. माइंड इट क्लियरली दैट थिंग्स आर डिफरेंट इन प्रेजेंट एंड पास्ट. नाउ हियर फोकस. प्ले इज अ वर्ब, मीन्स खेलना, बट the form which added here ing, it becomes playing. Okay, so you have to remember that whenever we use is, are as a helping or auxiliary verb, we have to add them verb in the form of ing. Understood? Third, transitive verbs that have object. Now the third one is that ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट को भी यूज़ किया जाए. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज दैट in which our sentence depend, means the result of our sentence. Let's take for example, he
whitewashed his house himself. Okay, now each part of this sentence we have to understand clearly. So first one, he is a subject जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं. सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है. अंडरस्टूड. वाइट वॉश्ड मीन्स एकदम अच्छे से क्लीन करना, सफाई करना. ये वर्ब है. क्या है? वर्ब. ओके. नाउ हिज हाउस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव भी कहते हैं, एडजेक्टिव होता है. ओके. नाउ हिज हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हमारा सेंटेंस जिस पे रिजल्ट करता हो. ही वाइट वॉश्ड, उसने साफ किया. बट उसने क्या साफ किया? तो उसका घर. हिज हाउस, इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड हिमसेल्फ इट्स डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट. ओके. So another one, my mother gave me a beautiful gift. Okay, nice. My mother means मेरी मम्मी. Gave means verb, दिया, हम इसे verb कहते हैं. me जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि मुझे दिया है. अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट को बता रहा है कि मम्मी ने दिया है मुझे. बट क्या दिया है? दैट इज़ ब्यूटिफुल गिफ्ट. अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू काइंड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन द मेन. द मेन विल बी द डायरेक्ट एंड द अनदर पार्ट विल बी द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने मुझे दिया. बट क्या दिया? वो हमारा मेन पार्ट है जिसे हम ब्यूटीफुल गिफ्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे. ओके. सेकेंड, किसे दिया? तो मुझे, मी, इट बिकम द इनडायरेक्ट. नेक्स्ट वन, 4, इंट्रांजिटिव वर्ब्स दैट डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट. अब हमें देखना है इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स, वो गा रही है. नाउ हियर वी हैव टू फोकस दैट शी सिंग्स. यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि वो गा रही है. बट ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो क्या गा रही है, सॉन्ग है, नात है, क्या है, वो हमें नहीं बताया जा रहा है. अंडरस्टूड. जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को यूज़ ना किया जाए उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. अनदर, ही पेंट्स, वो पेंट कर रहा है. यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो पेंट क्या कर रहा है, जस्ट ही पेंट्स, वो पेंट कर रहा है. फिफ्थ वन, verbs can be used transitively or intransitively depending on their use. See, verbs को हम transitively भी यूज़ कर सकते हैं और intransitively भी यूज़ कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है उसके यूज़ पर कि हमें उसे किस तरह यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, ही पेंट्स, ये वो पेंट कर रहा है. यहाँ पे हमने ये बताया वो पेंट कर रहा है. बट क्या पेंट कर रहा है ये हमने नहीं बताया. मीन्स विदाउट एन ऑब्जेक्ट वी हैव मेड द सेंटेंस. नाउ इट विल बिकम द intransitive. If we want to make the transitive means the object will be used, then it becomes he paints cinema posters. यहाँ पे देखिए, वो सिनेमा के पोस्टर्स पेंट कर रहा है. यहाँ फर्स्ट वाले में हमें से बताया गया है वो पेंट कर रहा है. सेकेंड वाले में हमें बताया जा रहा है कि वो क्या पेंट कर रहा है. मीन सिनेमा पोस्टर्स, इट बिकम अवर ऑब्जेक्ट. ओके, इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव. सो डियर स्टूडेंट, वी हैव रिफ्रेश्ड ऑल. नाउ इन अनदर वीडियो okay, here we have completed our refreshment part. Now in another video I will give the more concept. Okay, goodbye, have a nice day.